Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the great name of Allah. Assalamu alaikum students. Welcome to Physics Grade 9. This is the book of the Khyber Pakhtunkhwa textbook board Peshawar. Today is 28 April 2020 and we are going to start the new unit number 4, the turning effect of the force. In this chapter we are going to study the like and unlike parallel forces, head to tail rule of the vector addition, how forces is resolved into the perpendicular component, magnitude and the direction of the force from its perpendicular component, moment of the force or torque as a moment, force perpendicular distance from the pivot to the line of the action of the force, turning effect of the force by relating to everyday life, principle of movement, center of the mass and center of the gravity of the body, couple as a pair of the force tending to produce rotation, couple has same moments about all points, equilibrium and classified type, quoting example from everyday life, two condition of the equilibrium of a body, problems on sample balanced when bodies are supported by one pivot only, state of the equilibrium and classify them with common example, effect of the position of the center of mass on the stability of the simple object. Coming towards our topic, page number is 100. Until we have been concerned, in our previous lecture we studied about the kinematics and dynamics. Kinematic is the how of the motion and dynamic is the kinematic is the branch of the physics that deals with the motion of an object without knowing how and why, while in dynamics we study that how motion is created and why motion is created. In dynamics we deals on with the translational motion. In this chapter we are going to study about the rotational motion. Until we have been concerned mainly with the translation motion, discussed the kinematics and the dynamics of the translation motion, the role of the force. On this chapter we will deal with the rotation motion. We will discuss the kinematics and dynamics of the rotational motion involving torque. Our understanding of the world around us will be increased significantly and there may be few surprises. We will consider mainly the rotation of the rigid objects. Coming towards the turning effect of the force. In turning effect of the force means force which produce rotation in a body. Mainly we are concerned with the rotation of the rigid object. What is meant by rigid object? Rigid objects. A rigid object is an object with definite shape. A rigid object is an object with definite shape that does not change so that the particle composing it stay in fixed position relative to one another. अच्छा, रिजिड बॉडी हमारे पास कौन सी बॉडी होती है, कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? एन ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट शेप, जिसकी एक खास शेप होगी, दैट डज नॉट चेंज, जो चेंज नहीं हो सकती, सो दैट द पार्टिकल इट कंपोजिंग the particle composing it stay in the fixed position relative to one another. मीन्स कि जिन पार्टिकल से वो बना होगा एक दूसरे की निस्बत वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन में रहेंगे, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते. ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट को हम रिजिड ऑब्जेक्ट कहते हैं. और मेनली हम कंसर्न होते हैं विद द रोटेशन ऑफ द रिजिड ऑब्जेक्ट.
कमिंग टूवर्ड्स द बुक के बुक में हमने पढ़ा कि हमारे पास इससे पहले हमने काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में स्टडी किया था। काइनेमेटिक्स हमारे पास मोशन के बारे में स्टडी करता है लेकिन विदाउट नोइंग हाउ एंड वाई। इन डायनामिक्स वी स्टडी अबाउट द मोशन विद नोइंग हाउ एंड वाई। Mainly we discuss the translation motion. In this chapter we are going to discuss the rotational motion of the dynamics and the kinematics. We will consider mainly the rotation of the rigid object about a fixed axis. A rigid object is an object with the definite shape that does not change so that the particles composing it stay in the fixed position relative to one another. Underline this definition. क्या रिजिड ऑब्जेक्ट हमारे पास वो वाला ऑब्जेक्ट है जिसकी एक ख़ास शेप होगी और जिन पार्टिकल से वो बना है एक दूसरे की निस्बत वो पार्टिकल अपनी फिक्स्ड हालत में रहेंगे, वो अपनी हालत को चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे, उनकी रोटेशन को हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फोर्स डायग्राम। टॉपिक नंबर 2.1 फोर्स डायग्राम, पेज नंबर 100। To study the effect of the force acting on an object, we can apply the skill of drawing the force diagram. हम अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स के बारे में उसके असरात स्टडी करना चाहते हैं तो हमने एक ऐसा स्किल फन क्रिएट करना है कि अगर हम फोर्स का डायग्राम बना लें तो हम आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। सिंस फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द एरो। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि फोर्स हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स डायग्राम आर वेरी यूजफुल कंसेप्चुअल टूल फॉर फिजिक्स स्टूडेंट्स बिकॉज दे हेल्प एग्जामिन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ body. In force diagram, the object on which force are shown is reduced to a dot as its center and the forces acting on the object are represented by the arrow pointing away from it. अच्छा, यहाँ पर इन्होंने एक ऑब्जेक्ट को शो किया हुआ है। ये कह रहे हैं कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को एज्यूम कर लें, हम इस ऑब्जेक्ट को कंसिडर ना करें, यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्ट की जगह एक डॉट को कंसिडर कर लें, ये डॉट हमारे पास इस ऑब्जेक्ट को शो करेगा, तो हम नॉर्मल आसानी से इसके बारे में पता कर सकेंगे कि इस पर फोर्सेस एक्ट हो रही हैं कि नहीं हो रही। अगर हम देख लें तो हमने इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो लाइंग कर रहा होता है तो उस पर टू टाइप ऑफ द फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही होती हैं जब वो बिल्कुल स्टेट ऑफ द रेस्ट पे होता है। एक हमारे पास नॉर्मल फोर्स होती है, दूसरे हमारे पास उसका वेट होता है। नॉर्मल फोर्स हमारे पास क्या है? नॉर्मल फोर्स इज़ द फोर्स इज़ अ कंटैक्ट फोर्स। कंटैक्ट फोर्स हमारे पास क्या है? नॉर्मल फोर्स की डिफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी है लेकिन दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए। नॉर्मल फोर्स ए कंटैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द contact surface that prevents two objects from passing through one another is called नॉर्मल फोर्स। ठीक है, कंटैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द कंटैक्ट सरफेस। कंटैक्ट फोर्स मीन्स कि जो हमारे पास राब्ता बनाता है, दो चीज़ों के दरमियान हमारे पास राब्ता बनाता है, रिलेशन बनाता है। ठीक है, कंटैक्ट फोर्स हमारे पास जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द कंटैक्ट सरफेस होता है। मींस कि जिस सरफेस के साथ वो कनेक्शन में आ रहा है उस सरफेस के साथ ये क्या है? ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है। दिस इज परपेंडिकुलर मींस मेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री, द राइट एंगल दैट प्रिवेंट्स द ऑब्जेक्ट, जो क्या करता है? ऑब्जेक्ट को बचाता है कि वो एक दूसरे के से पास ना हो। और ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? इसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। जब कभी भी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट एट द स्टेट ऑफ द रेस्ट होता है उस टाइम उस ऑब्जेक्ट पर हमारे पास टू टाइप्स ऑफ द फोर्सेस एक्ट कर रही होती है। एक वेट है, दूसरा हमारे पास नॉर्मल फोर्स है। वेट हमारे पास कौन सी फोर्स है? द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। एंड देन normal force is the contact force that stops to prevent the two objects passing through one another is called the normal force. For example,
If we were to draw a diagram of this textbook placed at the rest on the table, we would reduce textbook to a dot and draw two arrows representing the force acting on it as shown in the figure 4.1a. One of the force is the weight of the book pulling it downward. The other force is the normal force ड्यू टू द बेंच पुशिंग द बुक अपवर्ड. अब जो नॉर्मल फोर्स है वो हमारे पास अपवर्ड एक्ट करेगी और वेट हमारे पास यूजुअली डाउनवर्ड एक्ट करेगा. ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स वेट हमारे पास डाउनवर्ड एक्ट करेगा, नॉर्मल फोर्स हमारे पास अपवर्ड एक्ट करेगा. यही नॉर्मल फोर्स जो क्या कर रहा है, इसको अपवर्ड एक्ट कर रहा है, तो ये बुक हमारे पास टेबल पर महफूज होगी. अगर हम इस टेबल को बीच में से हटा देते हैं, निकाल देते हैं, तो ये बुक हमारे पास फिर नॉर्मल फोर्स इस पर एक्ट नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर एक्ट करेगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी. जो कंटेक्ट था उसके साथ दूसरे ऑब्जेक्ट का, वो कंटेक्ट हमने बीच में से निकाल दिया, तो हमारे पास नॉर्मल फोर्स का इफेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा. उन्होंने कहा है कि बुक को हमने एज्यूम कर लिया है एज अ डॉट, के ये डॉट जो यहाँ पर हमारे पास ब्लैक कलर का डॉट है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है. नॉर्मल फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड एंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्टिंग डाउनवर्ड. ये दो फोर्सेस जो हमारे पास है, द नॉर्मल फोर्स एंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, नॉर्मल फोर्स एंड द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, normal force and the weight of object are opposite in direction and same in magnitude. इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल फोर्स है और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है अपोजिट इन डायरेक्शन है और सेम इन मैग्नीट्यूड है. इसी वजह से हम क्या कहते हैं, इनको हम बैलेंस फोर्सेस भी कह सकते हैं. ड्यू टू दिस रीज़न दे आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस. अब बैलेंस फोर्सेस हमारे पास कौन सी फोर्सेस हैं? बैलेंस फोर्सेस हमारे पास वो वाली फोर्सेस हैं जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं लेकिन डायरेक्शन उनका अपोजिट होता है, तो इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम बैलेंस फोर्सेस कहते हैं. किस तरह से बैलेंस होती है? क्योंकि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट को क्या कर रही होती हैं, बैलेंस कर रही होती है. फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्मल फोर्स और ये वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है इस बुक को बैलेंस कर रहा है, तो ये बुक हमारे पास जो है बिल्कुल अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट पे, अपनी पोजीशन पे बिल्कुल फिक्स पड़ा हुआ है. अगर हम इसमें से एक फोर्स को भी निकाल दें, जो एक कांटेक्ट सरफेस है हमारे पास, इस कांटेक्ट सरफेस को हम बीच में से निकाल दें, तब ये दोनों फोर्सेस हमारे पास जो हैं वो क्या हो जाएंगी, वो मैग्नीट्यूड उनका जो होगा वो सेम जो पहले था वो हमारे पास सेम नहीं रहेगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स हमारे पास ख़त्म हो जाएगी एंड ओनली हमारे पास कौन सी फोर्स रह जाएगी, हमारे पास सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स रह जाएगी. वही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगी, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करेगी और ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन की तरफ खींचा चला जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है द टू फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपवर्ड फोर्स ड्यू टू द टेबल. दीज टू फोर्सेज आर an example of the balanced forces. When an object is acted on by balanced forces, the forces cancel each other out and the object behave as there is no force is acting on it. यूजुअली अगर हम देख लें तो हमारे पास बैलेंस फोर्सेस में क्या होता है कि बैलेंस फोर्स हमारे पास जो होती हैं वो हमारे पास अपोजिट इन डायरेक्शन तो हैं लेकिन सेम इन मैग्नीट्यूड हैं, तो इस वजह से ये क्या करती हैं, कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, कि हमारे पास फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड and opposite in direction cancel effect of each other. जिस तरह से हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि हमारे पास एक्शन और रिएक्शन जो है वो हमारे पास दो फोर्सेस हैं जो हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही हैं, जो हमारे पास डायरेक्शन उनकी डिफरेंट है लेकिन सेम इन मैग्नीट्यूड है, इस वजह से वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही है. तो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो होता है तो हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर टोटली कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास बिल्कुल स्टेट ऑफ द रेस्ट में पड़ा हुआ है.
अगर हम इस पर कोई और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो तब ये ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, फिर इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट जो है वो चेंज होगी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फिगर 4.1 बी। दिस इज द फिगर 4.1 बी। Figure 4.1b is a force diagram of the textbook in free fall. Assuming negligible air resistance, the only force acting on the book is the force of the gravity downward. There is no balancing upward force. As a result, the force due to the gravity on the book is unbalanced and the book accelerate downwards. मैंने आपसे कहा ना कि अगर हम एरिया जो सरफेस ऑफ द कंटेक्ट है उसको अगर हम बीच में से निकाल देंगे तो हमारे पास नॉर्मल फोर्स ख़त्म हो जाएगा। ओनली और ओनली हमारे पास जो फोर्स रह जाएगी वो हमारे पास वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से उसका वेट होता है वो हमारे पास क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है अपने सेंटर की तरफ, अर्थ उसको पुल कर रहा है। तो जो उसकी बैलेंसिंग फोर्स थी, जो नॉर्मल फोर्स थी, वो नॉर्मल फोर्स ही हमारे पास ख़त्म हो गई है। तो अब जब ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारे पास एक्सेलरेट होगा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अब हमारे पास क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है। बिकॉज क्यों हमारे पास ऐसा हो रहा है कि बिकॉज हमारे पास जो नॉर्मल फोर्स थी जो हमारे पास उसको बैलेंस कर रही थी, नॉर्मल फोर्स बैलेंसिंग द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हमने क्या कर दिया है, दैट नॉर्मल फोर्स इज नॉर्मल फोर्स इज रिमूव्ड। हमने जो एरिया ऑफ कांटेक्ट था उसको ही बीच में से निकाल दिया, तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स रह गई है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट को पुल करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे पास वेट रह गया है वो हमारे पास अनबैलेंस रह जाएगा। इसी तरह से अगर हम फोर्सेस को देख ले तो हमारे पास जो है क्या होती हैं, पैरेलल फोर्सेस भी होती हैं। पैरेलल फोर्सेस हमारे पास क्या होती हैं, forces when the direction of the forces when the direction of the forces parallel to each other or they are acting in different direction, they are acting in the different direction, they are called parallel forces। अब पैरेलल फोर्सेस हमारे पास क्या हैं, वो फोर्सेस जिसमें हमारे पास दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एक ऑब्जेक्ट पर, लेकिन उनका डायरेक्शन क्या है, उनका डायरेक्शन सेम होगा। लेकिन लाइक दिस कि ये हमारे पास दो फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही हैं, इनका डायरेक्शन सेम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पैरेलल फोर्स भी कह सकते हैं। अगर यह हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है उस पर हमारे पास दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ये एक अपवर्ड एक्ट कर रहा है दूसरा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये भी हमारे पास पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगे। अब किस तरह से ये पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैरेलल फोर्सेस जो हैं वो टू टाइप्स की है। एक हमारे पास है लाइक पैरेलल फोर्सेस, दूसरा हमारे पास है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब पैरेलल तो आप लोगों को पता होगा कि पैरेलल हमारे पास क्या है, पैरेलल हमारे पास ये इस तरह से होता है कि मूविंग सेम टूवर्ड्स ईच अदर, के बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे के साथ वो मूव कर रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। अब लाइक पैरेलल फोर्सेस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास वो वाला फोर्स है कि हम एक ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जांपल हम हमारे पास एक बॉक्स है, ये हमारे पास एक बॉक्स है, दो बंदे जो हैं इस पर क्या कर रहे हैं, इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहा है एक यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब डिपेंड करता है उन पर्सनस पे कि ये एक बंदा खड़ा है, इसका जो फोर्स है वो कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है, दूसरा बंदा उस पर कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब शायद ये वाला बंदा जो है इस पर ग्रेटर फोर्स अप्लाई करेगा और ये लेस फोर्स अप्लाई करेगा,
तो अब जो लेस और ग्रेटर का कंसेप्ट हमारे पास आ गया है कि एक कम फोर्स अप्लाई करेगा, दूसरा ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। एक हैवी बॉक्स है, इसको 2 बंदे उठा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों जो हैं वो इक्वल अमाउंट में फोर्स अप्लाई करें। एक कम फोर्स अप्लाई करेगा, दूसरा ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। और इसी तरह से ये पैरेलल फोर्सेस तो हैं हमारे पास, एक ही ऑब्जेक्ट में एक ही डायरेक्शन पर वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बॉक्स को वो ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, लेकिन एक कम फोर्स अप्लाई करेगा, एक ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। तो हमारे पास क्या होगा, इस ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस हो जाएंगे। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम स्टीयरिंग व्हील जो है उसको टर्न कर रहे हैं, हमारे पास ये हमारे पास हो गया लाइक पैरेलल फोर्सेस, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, हमारे पास डायरेक्शन सेम है, इस वजह से ये हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस हो गया। अब हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होंगी कि अगर हमारे पास एक कार का स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग व्हील जो होता है उस पर एक हाथ फोर्स अप्लाई कर रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन, दूसरा हाथ क्या करता है उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। जब हम उसको इस तरह से यूँ टर्न करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ना कि ये स्टीयरिंग व्हील है, तो जब हम इसको यूँ टर्न करते हैं तो जो हमारा राइट हैंड है वो उस पर अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता है, जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो उस पर डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करता है, क्योंकि हम उसको रोटेट कर रहे होते हैं ना। तो हमारे पास यहाँ पर एक फोर्स अपवर्ड अप्लाई हो रहा है, दूसरा फोर्स हमारे पास डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो गए। अकॉर्डिंग टू द बुक पेज नंबर 101 बुक में देख लें आप लोग, यहाँ पर हमारे पास है इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेज आर पैरेलल टू ईच अदर इवन इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन दीज फोर्सेज आर कॉल्ड द पैरेलल फोर्सेज। दोनों हमारे पास पैरेलल फोर्सेज कहलाएंगी, चाहे वो हमारे पास सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों हमारे पास पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगी। लेकिन इनमें से एक हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्स होगा, दूसरा हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्स होगा। if they are same in direction they are called the like parallel forces, and if they are opposite in direction they are called unlike parallel forces. For example, like parallel forces, for example, when we lift a box with the double support we are applying like parallel forces from each support. The force from one support may be greater than the other as shown in the figure. कि ये एक बॉक्स है, एक बंदा उस पर ग्रेटर फोर्स अप्लाई कर रहा है, दूसरा उस पर लेस फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन दोनों जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स कि उसको बॉक्स को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। तो ये हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। फॉर एग्जांपल व्हेन वी अप्लाई फोर्स with our both hands on steering wheel of the car to turn it, the force from one hand may be greater than the other as shown in the figure. वी आर अप्लाइंग अनलाइक पैरेलल फोर्सेज, मीन्स कि यहाँ पर हम इसको अपवर्ड मूव कर रहे हैं, यहाँ पर हम इस व्हील को डाउनवर्ड मूव करेंगे बिकॉज वी आर रोटेटिंग। तो जब रोटेटिंग होगा तो एक फोर्स हमारे पास अपवर्ड होगी और दूसरी हमारे पास जाहिर सी बात है कि डाउनवर्ड होगी। तो हमारे पास यहाँ पर जो फोर्सेज हैं उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई हैं, तो वो पैरेलल फोर्सेज, लेकिन चूंकि डायरेक्शन उनकी अपोजिट हो गई है तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेज कहेंगे। दिस इज़ अवर टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच। जानने और सीखने और पढ़ने के लिए इस वीडियो को बार बार देखिए और सीखने और पढ़ने का अमल जारी रखिए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।